बेटा। मैं बताऊं? Sticks. मैं बताऊं? एक सेकेंड, जिस बच्चे ने बोला है पहले कि मैं बताऊं, वो कौन सा बच्चा है? मैम मैं अनुष्का. अनुष्का, आप बताओ। Yes, ma'am. Sticks, stones, and sword. या स्टिक, स्टोन्स, बैट एंड Sword. ब्रिक्स। बैट एंड ब्रिक्स। सोड, सोड तो उन्होंने कंपैरिजन किया है बेटा. दे हैव कंपेयर्ड हार्श वर्ड्स विद सोड. ठीक है, दे हैव कंपेयर्ड हार्श वर्ड्स विद विद सोड. तलवार कहा था ना कि तलवार रूपी शब्द, नहीं शब्द रूपी तलवार, सॉरी. ठीक है, कि मतलब हमारे शब्द ऐसे हैं जो कि एक तलवार की तरह चुभते हैं. ओके, लेकिन what are the things, some of the things that can harm us? They are stones and sticks, stones and sticks, bats and Bones. bricks. Bones. Ma'am. Bricks बेटा, आदम and bricks. brick क्या होता है? ईंट, पत्थर. पत्थर. So bats, so bat and brick. All of you say it. Stones and sticks, bat and bricks. Stones and stick. Brack and Bat, bats bat, and bat and stick. Bat and brick. yes, very good. तो हमारी जो बॉडी है, it can be injured by these. ठीक है? How do harsh and bitter words hurt the poet? मैम मैं बताऊं प्रीति? मैम मैं बताऊं अपूर्वा? प्रीति पहले, प्रीति फिर अपूर्वा. पहले प्रीति बताएगी. बोलो बेटी. And bright word are like sand and proud sound. They the poet said him. प्रीति, your voice is not clear. मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या बोला बच्चे. Okay, Apurva, can you repeat what she said? Yes, ma'am. Apurva, can you repeat what Preeti had said just now? They make him feel sad, upset, and wounded from inside, even if there is no physical injury. Yeah, there is no physical injury. Okay, so harsh and bitter words can hurt you from inside. Very good, Apurva. Very good, Preeti. Anybody else? कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? मैम मैं अनुष्का. हाँ बोलो बेटा. The harsh and bitter words hurt the mind and heart. The pain caused by the words has left its scar on the heart of the poet. Yeah. मैम मैं बताऊं? Okay, हाँ बोलो बेटा. स्वरा. Yes. Harsh and bitter words hurt the poet's feeling. Yes, they hurt poet deeply. Okay, and is there a cure? Is there a cure to it? क्या हम उसको cure, हम can we fix it? Can we cure it? Can we cure harsh if we are hurt by harsh words? Can it be cured? Like physical injury? No, Can it be? No, it cannot be. ठीक है? It has an everlasting effect. ओके, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने इसका आंसर लिखा है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा. आप कर दिया है. कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. Harsh Yes, ma'am. words hurt the poet more deeply than the physical things like sticks and stones. They stay in his mind and heart and make him feel sad, ashamed, and worried again and again.
ठीक है, आई विल Yes, शेयर ma'am. मैं आंसर शेयर करूंगी सो दैट आप उसको याद कर सको, लेकिन आपने बहुत अच्छे जवाब दिए बेटा। ठीक है, अब सी है, व्हाट कैन हील फास्टर, बॉडी और द माइंड एंड हार्ट, एंड एक्सप्लेन योर चॉइस। मैम मैं बताऊँ आपको? मैम मैं बताऊँ अपूर्वा? मैं बताओ स्वरा। मैम मैं बताऊँ? एक सेकेंड, मैम मैं अपूर्वा? 1 मिनट बेटा, अपूर्वा आप अनुष्का। बताओ। अच्छा अपूर्वा बताओ। प्रीति एक सेकेंड दो मेरे को, जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा। अपूर्वा आप बोलो। Ma'am, बोलो the बच्चे। body heals faster. Physical words recover in 5 days, but emotional words take a long time to heal because hurtful words remain in our mind and heart. यस अपूर्वा, वेरी गुड, वेरी नाइसली एक्सप्रेस्ड। ये प्रीति बेटा आप बताओ। या प्रीति, प्रीति आर यू देयर बच्चा? Yes, ma'am. हाँ जी बताओ, यू वांट Body and full and research fast then our mind and hands यस when our mind and heart get hard in different us for a long time. हाँ, they linger there for a longer time. Harsh words, hard words नहीं बेटा, harsh words linger in our mind for a longer time and there is no cure to it. हम उसको नहीं ठीक कर सकते, we cannot fix it, okay? हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो है अच्छा, why are harsh words called ghosts? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊँ अपूर्वा? अपूर्वा प्रीति आप लोग चुप हो जाओ, स्वरा को बोलने दो, देन साई यू विल गेट द चांस, दीपाली इज आल्सो देयर। मैं बताऊं? एक सेकंड पहले स्वरा को बोलने दो, लेट्स स्वरा से। हाँ Because the disturb our mind for long time. वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड, थम्स अप टू यू, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यू हैव यूज्ड अ डिफरेंट वर्ड टू एक्सप्रेस योर आंसर, वेरी गुड एफर्ट। साई आप बताओ बेटा, साई, why are harsh words called ghosts? Harsh words are called ghosts because they hurt our emotions and the insult caused by words disturbs our mind for a long time. Longer time. वेरी गुड साई, वेरी गुड साई, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो बेटा आप लोग सब लोग। एंड गोकुल, yes Gokul, you now Gokul will unmute himself. What does the poet want you to keep in mind when you speak? What is that thing मैं that बताऊं? Gokul have a मैं chance? Swara, Anushka, Preeti, Dipal, sorry, अपना अपूर्वा, please give chance to others also. मैं बताऊं? गोकुल के नाम से कौन बच्चा है? मैं ईश्वरी हूँ मैम। ऐश्वर्या, अच्छा आप बोलो बेटा। What does the poet want you to keep in mind when you speak? E. Question number E. The poet say that Harish, हाँ या प्लीज ट्राई, बोलो बच्चा। ऐश्वर्या बोलो, ऐश्वर्या आप हिंदी में बोलो। अच्छा मैं आपको बता दूंगी। ऐश्वर्या आप हिंदी में बोलो बच्चे। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? एक सेकेंड, ओके मैं बताऊं स्वरा? मैं बताऊं प्रीति? मैम मैं प्रीति बताऊं? 1 मिनट, दीपाली, दीपाली है, दीपाली, आदम शेख आप बताओ, आदम शेख आप बताओ। What does the poet want you to keep in mind when you speak? Yes? मैम मैं बताऊँ अपूर्वा? एक मिनट बेटा, हमें मैम मैं और बताऊं सही? मैं बताऊं श्रेया?
मैं बताऊं प्रीति? श्रेया आप बताइए, श्रेया आप बताइए। Yes, ma'am. Because words injurious you like so words. What does poet want you to keep in mind when we speak? जब आप बोलते हो तो पोएट क्या चाहता है, आप अपने दिमाग में रखो। मैम मैं बताऊं? ऋतुपूर्णा, 1 मिनट बेटा, ऋतुपूर्णा बोलो। बाकी लोग म्यूट पे हो जाएंगे क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है। मैम क्वेश्चन ऋतुपूर्णा अनम्यूट योरसेल्फ। मैं बताऊं प्रीति? रिपीट कीजिए ना। ऋतुपूर्णा मैम क्वेश्चन बताइए ना मुझे। 1 मिनट। ऋतुपूर्णा क्वेश्चन नंबर ई है। मैम आप क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक? जब आप बोलते हो क्या दिमाग में रखना चाहिए हमें? मैम मैं बताऊं अपूर्वा? वेट, स्वरा, अपूर्वा सब लोग म्यूट हो जाएंगे। नोबडी विल अदर देन ऋतुपूर्णा। ऋतुपूर्णा नहीं, कोई भी नहीं। आप बोलिए ऋतुपूर्णा। ऋतुपूर्णा बोलिए प्लीज। has left its scar on mind and heart that's tender. No, so for that we should not give pain to others na when we speak. So what should we keep in our mind? हमें क्या दिमाग में रखना चाहिए जब हम दूसरों से बात करते हैं? बताओ बेटा। आप हिंदी में बता दो ऋतुपूर्णा बेटा। I'll do the translation part. या हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ध्यान में रखना चाहिए कि आगे वाले को कोई दर्द ना हो हमारी बातों से। बिल्कुल ठीक। तो हम क्या बोलेंगे उसको? We should think before we speak. Okay? All of you say it together. We should Okay, think. ma'am. We should think. Yes, ma'am. We should think before We we should speak. think Before we before speak. before we speak. So be careful with your words. Okay? It might hurt somebody. Yes, ma'am. Okay. Next is अब हमने rhyme scheme कर ली थी. We will not take waste time in this. ये एक poem का जो है आपको ये लिखना है। Question number 7 है. You take it as a homework. ठीक है? It's a poem appreciation. जिसमें you know the title of the poem. Everyone knows the title of the poem. Yes, ma'am. Truth. Who is the truth? Who is the poet of the poem? Barry Who is the poet? Barry Wade. Barry Wade. What is the theme? What is the theme? Theme of the poem? Ma'am, we should not say anything bad. We should not say anything bad. Only one line. Only one line. Think before you Think. think before you Speak. speak. Very good. Think, That's the speak. theme. There are three stanzas. Okay. Yes, ma'am. What is the rhyme scheme? You all know. We have discussed it. Ma'am, Figure of speech. You know what are the figures of Alliteration, speech in this? alliteration. Poetic devices used. Alliteration You know and the repetition. and repetition. Alliteration and repetition. Very good, beta. alliteration. And it has Alliteration imagery and- also. Okay, 1 minute. It has number 3. It has imagery. Imagery, and it has got personification. Don't forget personification. I told you words are treated as ghosts. Yes. Words are treated as ghosts. Ghosts. So that line shows personification, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then write them here. The line ma'am. I like most. Which line have you liked the most? आपको कौन- Yes, ma'am. Ma'am, मैं बताऊं अनुष्का? Can also hurt. कोई भी
हाँ, आपको पसंद है, जो आपको पसंद है वो लाइन। But words can ठीक है, also hurt. क्वेश्चन नंबर, यस, सो क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर homework, okay, this is your homework. Okay, ma'am. Noted? Okay, ma'am. Very good. Okay, now we come to the next lesson. एक मिनट बेटा, हम लोग अब जा रहे हैं 3.4, लेसन नंबर 3.4. It's page number 70. Okay. अब एक कोई मेरे को बताए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, व्हाट इज इट? The two gentlemen of Verona. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, जब हम अब सब लोग म्यूट हो जाओ, सब लोग म्यूट हो जाओ बच्चा. जब हम टू जेंटलमैन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? व्हाट कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी? दो पर्सन मैम, दो आदमी. पर्सन. वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड अपूर्वा, कि हमारे दिमाग में दो जन है ना, टू इंटेलिजेंट, टू डिसेंट, वेरी डिसेंट पीपल, है ना, जो बहुत ही बहुत शालीन किस्म के लोग, बहुत कहते हैं ना अच्छी नेचर रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, है ना, ऐसे आते हैं ना लोग. लेकिन जेंटलमैन का क्या मतलब हुआ? मैन, मैन हुआ बड़ा आदमी, बड़ा इंसान. Yes, ma'am. है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो जेंटलमैन है ना बेटा, जो जेंटलमैन है वो दो बच्चे हैं आपके जैसे, दो छोटे बच्चे, एक 12 साल का और एक 13 साल का. उन दो बच्चों के लिए उन्होंने बोला है टू जेंटलमैन. तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन उठता है? एक बच्चे के लिए हाउ कैन यू यूज वर्ड जेंटलमैन? क्या आता है दिमाग में? क्यों Yes. आता है ना कि मैम, बड़े किसी बड़े, Yes, आता है. सम्मानित पुरुष मैम. तो यहाँ पर मैन का मतलब आदमी नहीं है, मैन का मतलब है दो ऐसे लड़के, बच्चे जिनके अंदर क्वालिटीज हैं जेंटलमैन की. और वो क्वालिटीज क्या हुई? दूसरों का ध्यान रखना, नम्रता से बोलना, दूसरों की मदद करना, अपने को पीछे रख के दूसरों का सोचना. सेल्फलेसनेस. सेल्फलेसनेस का क्या मतलब हुआ? कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं. सो वी से ना जेंटलमैन क्वालिटीज, है ना. Yes. Yes, ma'am. लेसन शुरू करो. एक मिनट मेरे को दो मौका बेटा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि वेरोना, वेरोना क्या है? व्हाट इज वेरोना? It is a town. It is a semi-desert city. I think it was Apurva's voice. Ma'am, it is a town. It is a, एक second. Just give me 1 minute. Town. It is not a town. It is a city. उसको क्या कहते हैं हम बेटा? City. सिटी का नाम है मैम. इसको हम उसको शहर बोलते हैं. मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही है. दिखेगी मेरे बच्चे, एक सेकंड दे दो मुझे. वो चीजें खोल रखी होती हैं तो एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाता है बेटा. या अभी दिखेगा आपको. हाँ, अब दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख गया? अब दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. मैं आपको वेरोना जो है दिखाने ले जा रही हूँ. ये यहाँ पे मैंने दो मैप्स डाले हैं, ठीक है. ये जो सेकंड मैप है, लेट्स, ओ सॉरी, एक सेकंड, नॉट दिस वन, दिस वन. हाँ, लेकिन पहले इसको समझने के लिए आप ऊपर देख लो. आपको यहाँ पर इटली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस इटली वर्ड रिटन हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. इटली ये एक जगह है, इटली, मैम, यह एक सिटी ठीक है.
इसके अंदर यहाँ मैम है एक सेकंड सुनो, वेरोना एक सिटी है बट कहाँ है इटली में, अब वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये सेम मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो कैन यू सी वेरोना रिटन हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. में बेटा Yes, वेरोना ma'am. इज वन ऑफ द सिटीज ऑफ इटली, ठीक है। और हम जो इस कहानी की बात कर रहे हैं ना, वो उस टाइम की कर रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। अब आपको पता है जब सारी दुनिया वॉर करती है, झगड़ा करती है, हाँ, लड़ाई झगड़ा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर। जब Yes. कुछ कंट्रीज एक तरफ होती हैं और कुछ कंट्रीज दूसरी तरफ होती हैं, और वो कंट्रीज आपस में मिलके लड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ल्ड वॉर। युद्ध मैम, वर्ल्ड वॉर, हाँ, जो महायुद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था 2, वर्ल्ड वॉर। नॉट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। हाँ जी, उस टाइम पे यस मैम। इटली में बहुत सारे शहर थे जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्या हो गए थे? डिस्ट्रॉय हो गए थे, घर टूट गए थे, उनके ऊपर बॉम्ब गिर दिए थे, लोग नहीं रहे थे जीवित, ठीक है। तो अब आपको दिख गया इतना? नाउ आई टेक यू। यस, तो जो ये हम कहानी आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप ये देखो यहाँ पर मैंने ब्लैक से आउटलाइन किया है, Yes. दिख रहा है ब्लैक से? ये है एल्प्स। ये Yes, ma'am. क्या है? एल्प्स क्या है? क्या हो सकते हैं? आपने पहाड़ देखे? मैम एक कंट्री। नहीं बेटा, पहाड़ 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 देखे ना? पहाड़ में पहाड़। हाँ, तो ये एल्प्स जो है माउंटेन्स हैं बेटा, पर्वत बोलो आप उनको, पहाड़ बोलो, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ इस तरह से ये चारों तरफ है। आप देख रहे हो मैं अपना कर्सर घुमा रही हूँ? Yes. आप देख माउंटेन रहे रेंज। हो, है ना? Yes, ma'am. It is like, yes, it is a complete ring sort of a thing. It is not very clear. ठीक है, तो ये सारे हमारे एल्प्स हैं। क्या है बेटा? एल्प्स। और हमारे वेरोना इज अ सिटी समवेयर हियर, हमारी वेरोना सिटी यहाँ पर है, ठीक है। एल्प्स पे आप समझ लो, एल्प्स के गोद में है वेरोना सिटी, ठीक है। इतना समझ आ गया? Yes, अब yes, मैं इसको, यस मैम। अब हम जो लेसन करने जा रहे हैं बेटा, एक सेकंड, एक मिनट बेटा, उसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा एक माइंड मैपिंग सॉर्ट किया है, आपको थोड़ा सा आप समझ लो, उसके बाद हम लेसन को पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर हम ये समझ गए हैं कि 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 13 साल का, जिनको हम जेंटलमैन बोल रहे हैं ऑफ वेरोना, और है ना? हाँ बोलो बेटा। ये वहां पर कुछ बहुत आवाज आ रही है बेटा, म्यूट पे हो जाओ सब लोग, ठीक है। तो हमने उनको, वो दोनों जो बच्चे हैं, दे आर ब्रदर्स, एक जेकॉब है, एक निकोला है, दे आर द ब्रदर्स, ओके। निकोला बड़ा है, जेकॉब छोटा है, ही इज 12 years old, निकोला इज 13 years old, ओके। अब व्हाट दे डू, वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे कहानी में हमने जब उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या करते हैं? दे सेल फ्रूट्स, वो फ्रूट बेचते हैं। दे शाइन शूज, वो जूते पॉलिश करते हैं। दे सेल पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचते हैं। और दे डू अदर काइंड्स ऑफ ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स का मतलब छोटे छोटे काम। और उन कामों से उनको, वो बहुत तरह के काम करते हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे काम करते हैं ना ये दोनों बच्चे, अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इनके मम्मी पापा कहाँ हैं, बच्चे क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? आता है ना दिमाग में? Yes, मैम। ओके, हाँ स्वरा बोलो, बोलो बेटा। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके जो पिताजी थे तो उनकी डेथ हो गई थी। वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड। फादर की डेथ हो गई थी, घर टूट गया था,
मदर थी नहीं, तो दोनों बच्चे, ये दो जो बेटे थे, दो भाई थे, इनकी एक बहन थी, दे हैड अ सिस्टर। वो सिस्टर को हाँ वो बहुत बीमार थी, थी मैम। है ना, बीमार थी, she और उसके इलाज के लिए, उसकी दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए दे हैड टू अरेंज मनी। तो वो पैसा कहाँ से आता? suffers from the tuberculosis. Yeah, she was suffering from tuberculosis. Very good. ठीक है, तो she was suffering from tuberculosis. They wanted medicine, and they wanted money for her medicine and for her to cure her from tuberculosis. तो उनको वो पैसा चाहिए था, वो पैसा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, they were doing these small odd jobs. काम करते थे, कभी वो हाँ छोटे छोटे काम करते थे, और उससे जो पैसा आता था उसको बचाते थे. सो दे वर डूइंग अ व्हाई, एंड अब आता है व्हाई दे डू इट, जो मैंने अभी डिस्कस किया, अभी आपने सही बताया. दे डिड इट फॉर सिस्टर, शी इज सिक एंड दे नीड मनी फॉर हर ट्रीटमेंट. के ट्रीटमेंट के लिए उनको पैसे चाहिए थे. ठीक है ना. जब वो उन्होंने ऐसे काम किए और अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे बचाए, सो उनकी इस आदत से या उनकी इस काम से व्हाट वी लर्न, हम क्या सीखते हैं? व्हाट डू वी लर्न, हम क्या सीखते हैं? हमें क्या सीख मिलती है बेटा? लव एंड केयर, हमें दूसरों को प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, हार्ड वर्क, हमें मेहनत करनी चाहिए, एंड अपने को पीछे करके दूसरों का सोचना चाहिए. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जवाबदारी. अपनी जवाबदारी, अपनी जवाबदारी कि हमें क्या काम करना है, हमें ये सोचना चाहिए, और वो हमें कार्यरत रहना चाहिए, हमें अपने कर्मों को, हमें अपने काम पूरे करने चाहिए. मैम. हाँ तो ओके मैम. ओके, छोटे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. अब ये बताओ, इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो नरेटर है, जो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं अपने जीवन की, वो जो है इन दो बच्चों से बहुत प्रभावित होते हैं. He is impressed by these children. Okay, number one. And how does he help them? वो उनकी कैसे मदद करते हैं? So कहानी में दो जगह है जहां पर हम उनको मदद करते हुए देखते हैं. Okay, so now I go back to the story. Ma'am, हाँ बेटा. what is the meaning of sacrifice? Sacrifice का मतलब त्याग. ठीक है, जब हमें त्याग करना चाहिए दूसरों के लिए. त्याग का मतलब ये नहीं है कि हमको अपने एक सेकेंड, मैं राइट 1 मिनट बेटा. मैम स्क्रीन आधी ही दिख रही है. अच्छा दिखेगा, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी, हैव पेशेंस. अब दिख रहा है बेटा? Yes, मैम. तो बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है. सो एक सेकेंड, मैं इसको रीड कर देती हूँ. ये आपको बॉक्स में दिख रहा है ब्लू से जो लिखा हुआ है, कैन यू सी इट? Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. in Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin, the author does not name the war directly. वो उसने ये नहीं बताया कौन सी वॉर है, इसने सिर्फ ये बोला वॉर. ठीक है, but all the clues in the story clearly show that it is referring to the Second World War. How do we know it is Second World War? अब हमें कैसे पता कि ये Second World War है? सबसे पहली बात है, the story takes place in Verona, Italy. इटली में जगह है विरोना, अभी मैंने आपको दिखाया. ठीक है, ये हमें हाँ. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अभी यहाँ पर हम कैसे कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 है? तो
हमें ये पढ़ने को मिला कि इटली सफर्ड हेवी लॉसेस एंड फेस डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। इटली में बहुत तहस नहस हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर। वहां पे बहुत सारी सिटीज डिस्ट्रॉय हो गई थी और वेरोना, बहुत सारी जगहें थी बहुत जहां पर कि इस तरह की हादसे हुए थे, बॉम्ब गिरे थे, लोग मर गए थे, घर टूट गए थे, बेघर हो गए थे, ठीक है, बच्चों के माँ बाप नहीं रहे थे। तो इन सिचुएशंस को देखकर, इन चीजों को, लाइंस को पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि इट इज अ स्टोरी रिलेटेड टू वर्ल्ड वॉर टू। समझ गए? Yes, ma'am. अब आई वांट, अब ये सब नहीं बोलेंगे कि मैं पढ़ूं। आई वांट, मैं सिर्फ नाम लूंगी, नहीं सब नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मैं आदम शेख, आदम शेख रीड फ्रॉम हेयर टू हेयर। आप लोग बोलेंगे नहीं कि मैं पढ़ूं। मैम उसके बाद मैं पढ़ूंगी। मैम मैंने किसी का नाम उसके बाद नहीं लिया। मैं पढ़ूंगी दीपाली। ओके दीपाली, 1 मिनट, सब लोग म्यूट हो जाओ, एवरीवन विल बी ऑन म्यूट। महेश्वरी। पहले आई विल नॉट रिज्यूम अनलेस आप चुप हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? म्यूट करो अपने को। आदम शेख पढ़ो बेटा, इसको रीड करो। ये was very Has, has has very well carved very well called the and idea idea for Sifal's help and playing and importance of of the dedication decision towards repetitions हाँ in the story. The Tao German टू बेटा, टाइम नहीं, टू to German men of Verona. of Verona. The story revolves around the boys named called Nicola and Jacob. Yes, who who were to hungry who numerous things, who do numerous things to earn money money only to play for their sister. treatment, Treatment was who for suffer for from बेटा, for नहीं बच्चे, from tuberculosis for the spine. अच्छा, आदम शेख, what is the spelling of for? FOR. Say it, Adam Sheikh. Adam Sheikh, what is the spelling of for? FOR. Okay? for Yes or नहीं? FOR. From की क्या spelling है? FROM. 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 And off होता है OF. Off. ठीक है? So off, for and ठीक है बच्चा? अच्छा, अभी हम सब समझने की कोशिश करेंगे. What is the name of the author? इसका author का क्या नाम है? AJ Cronin. So he has very well carved the idea. Carved the idea का क्या मतलब होता है? What is the meaning of carved? उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस आइडिया को, है ना, अपने सबके सामने प्रस्तुत किया है. और वो कौन सा आइडिया है बेटा? हम क्या सीखते हैं? सेल्फलेस हेल्प.
क्या मतलब हुआ? सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है? सेल्फलेस हेल्प एंड एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन, और उन्होंने क्या अहमियत है, ठीक है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, किस चीज की? डेडिकेशन, मतलब आप दूसरों के लिए जीवन अपना जीते हो, डेडिकेट कर देते हो, ठीक है? टुवर्ड्स रिलेशनशिप इन द स्टोरी। अब यहाँ पे हम किसका डेडिकेशन देख रहे हैं बेटा? The two boys. उन दो लड़कों का मैम। किसके Relationship लिए देख रहे हैं? किसके लिए? for their sister. सिस्टर के लिए। सिस्टर। एंड क्यों? For her children. राइट, हाँ, तो इसीलिए उनको टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना बोला गया है। अब ये जो कहानी है, ये दो जो बच्चे हैं उनके नाम क्या है? व्हाट आर द नेम्स Nicola and how old are they? And Jacob. what are their ages? How old are they? कि क्या उम्र? 13 years old. Who is older? Who is older? दोनों में से बड़ा कौन है? Jacob. Nicola. Nicola. Nicola is 13 years old. Jacob is 12 years old. ठीक है? और जो निकोला है वो ज्यादा समझदार है अपने छोटे भाई से, ठीक है? अभी ये कहानी इतनी काफी लंबी है, लेकिन इन्होंने इसमें इसको एब्रिज्ड फॉर्म में आपको दिया है। नाउ दीपाली एंड नोबडी एल्स विल रीड दीज लाइंस, सिर्फ दीपाली। के बाद में पढ़ूं। एक सेकंड, सब लोग म्यूट पे हो जाएंगे। मैं प्रतीक्षा भी रुक जाओ। दीपाली आप पढ़िए बेटा। The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits. He buys खरीदता है। He buys the biggest basket and drives toward the town. Yes. This scene emphasizes emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. Yes. So what is the meaning of emphasizes? Emphasize का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? हिंदी में बताओ। आमने सामने में जोर देना, किसी बात पे जोर देना। एंड फॉरबिड्स का क्या मतलब है? फॉरबिड्स सामने में फॉरबिड्स का मना करना। वेरी गुड, मना करना, एक्सीलेंट। और इंटीमेसी क्या मतलब हुई बेटा? क्लोज रिलेशनशिप हो, या बोलो आपस में जान पहचान होना, है ना? जान पहचान हो गई थी ना। तो who was the one who was stopping narrator from buying fruits? उन्होंने wild का मतलब जंगली fruit, they were selling strawberries। तो उन्होंने, जो ड्राइवर था उसने नैरेटर को रोका कि आप मत खरीदो ये वाइल्ड फ्रूट्स, बिकॉज ये ठीक नहीं। लेकिन नरेटर ने फिर भी खरीदे। क्यों? Why did he buy them? What was the reason? मदद करने के लिए। Because नीरोचल एंड ट्रबल की मदद करने के लिए। Yes, very good. He wanted to help those kids. He was so impressed by the two boys. उसको लगा कि ये दो छोटे बच्चे
बजाय स्कूल जाने के, पढ़ाई करने के, ठीक है, वो बच्चे जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो कोई मजबूरी है उनकी काम करने की, तो उसने सोचा कि मैं इनकी इसी तरीके से मदद कर देता हूँ, मैं ये फ्रूट सारे खरीद लेता हूँ और इसके पैसे दे देता हूँ. तो दिस इज हाउ द नरेटर, सो नरेटर इज ऑल्सो अ गुड मैन. इसके अंदर तीनों अच्छे लोग हैं, ये दोनों बच्चे और नरेटर तीनों अच्छे हैं. आपको मैंने फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स दिखा दिया था, एल्प्स माउंटेन दिखाए थे अभी. आई शोड यू एल्प्स. Yes, ma'am. Ma'am, अब मैं पढ़ूँ क्या? एंड फुटहिल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुटहिल्स? फुटहिल्स का मतलब जहां से पहाड़ शुरू होते हैं बेटा, जहां से पहाड़ शुरू होते हैं. तो ही वॉज कमिंग डाउन दी एल्प्स, वो पहाड़ पे से आ रहा था, ठीक है, वहां से उतर के आ रहा था, जब उसका एनकाउंटर, जब उसका आमना सामना इन दो बच्चों के साथ हुआ. ओके, इन दो बच्चों के साथ हुआ, राइट? समझिए इतना. Yes, ma'am. ओके, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, अब बाकी सब बोलते रहिए. प्रतीक्षा will read from here to here. प्रतीक्षा, पढ़ूँ नायरा? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ. Everyone is on mute. I said mute. Only प्रतीक्षा आप शुरू करो. मैम मैं पढ़ूँ क्या? प्रतीक्षा, मैं पढ़ूँ? प्रतीक्षा अनम्यूट करो. प्रतीक्षा रीड करो बेटा. प्रतीक्षा, आई एम वेटिंग. ऋतुपूर्णा आप रीड करो. 1 मिनट. प्रतीक्षा, ऋतुपूर्णा आप रीड करो. The boy is very useful to the narrator. They are very willing to satisfy. No, I have highlighted. Wait, ऋतुपूर्णा, I have highlighted the paragraph. आप वो पढ़िए बेटा. मैम पढ़ती हूँ वो वाला. Next day, the boys are found shining shoes in the public square. This amazes the narrator. This is when they reveal the fact that they do numerous kind of things to earn money. Third, the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. He finds them to innocent, serious, pleasant, and earnest. वेरी गुड ऋतुपूर्णा, आपने बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ा. आई थिंक पता नहीं बच्चों को समझ आया है कि नहीं आया है. वो कहते हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है, द बॉयज वर फाउंड शाइनिंग द शूज. तो पहले दिन दे वर सेलिंग वाइल्ड फ्रूट्स, द नरेटर हेल्प देम, ठीक है. सेकेंड डे क्या देखा उसने कि वो लोग जूते पॉलिश कर रहे थे किसी पब्लिक प्लेस में बैठ के. एंड दिस अमेजेस द नरेटर. को लगा ये क्या, कल तो ये बच्चे कोई और काम कर रहे थे, आज ये कुछ और काम कर रहे हैं. And this is when they reveal the fact. What is the meaning of reveal? Reveal का हिंदी में क्या मतलब है? मैम मैं पढ़ूँ इसके बाद? मैम मैं पढ़ूँ इसके बाद? 1 मिनट बेटा, reveal का मतलब बताओ पहले. हाँ, मैम प्रदर्शित किया the fact. मैम मैं पढ़ूँ इसके बाद? That be 1 मिनट बेटा, बीच में. प्रीति, प्रतीक्षा, अभी आप चुप रहो बेटा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, फिर मैं आपका नाम लूंगी, ठीक है. तो उन्होंने फिर ये बताया कि दे डू, यही काम नहीं, वो बहुत सारे काम करते थे. दे डू न्यूमरस काइंड ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी. और वो ये सब क्यों करते थे? क्योंकि वो इस तरह के छोटे छोटे काम करके पैसे कमाते थे. Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in the heart. तो जो नरेटर था वो पहले से ही उनसे इम्प्रेस था, लेकिन अब उसके दिल में एक उनके लिए सहानुभूति आ गई. एक सिंपल ही क्यों आई? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये बच्चे किसी मजबूरी से काम कर रहे हैं. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. अब एक बात सुनो, इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप एक जेंटलमैन में देखते हो? इनोसेंट, सीरियस, प्लेजेंट एंड अर्नेस्ट. प्लेजेंट और ऑनेस्ट, हाँ, ट्रूथफुल एंड सीरियस. दे वर वेरी सीरियस काम के लिए, है ना.
सीरियस मैम। हाँ कोई मजे। तो आप देखो इनके अंदर जो जो क्वालिटीज उन बच्चों में थी, अगर आपको ये प्रश्न दिया जाता है एग्जाम में कि इनको टू जेंटलमैन क्यों बोला, तो यू विल से हियर जेंटलमैन डजंट रिलेट टू मनी और एज, उसका पैसों से और एज से, उम्र से लेना देना कुछ नहीं है। दे आर कॉल्ड एड्रेस्ड एज जेंटलमैन because they have the qualities of a gentleman, both of them. ठीक है, they are honest, they are hardworking, they are truthful, they are जिसे कहते हैं very serious, and they are selfless, dedicated, selfless है बिल्कुल ही, कहीं पे भी अपने बारे में नहीं सोचते, जो पैसा कमाते हैं उसको वो सेव कर रहे थे, they were not spending it on themselves, right? अब दीपाली, मैम मैं प्रतीक्षा, मैं बाद में आऊंगा। मैम प्रीति आप पढ़ लो। प्रीति एक सेकंड बीच में मत बोलो बच्चा, यही पढ़ो आप। प्रीति पढ़ो। बाकी लोग मैं पढ़ूं? वेट, प्रतीक्षा आपको मैंने पहले दिया था चांस। प्रीति आप पढ़िए बेटा। मैम प्रीति के बाद to the neighbor, they are very willing to Satisfy मैं पढ़ूंगी, satisfy all nonsense हाँ requires मैं पढ़ूंगी, requires they are also मैं पढ़ूंगी, वेट counseling बेटा बीच में मत बोलो। हाँ प्रीति कंटिन्यू करो बच्चे। हाँ newspaper by the yeah. Narrator by the narrator one stormy night. soaring night one day when the narrator asks if he can help them in any they say they will feel very very grateful if they like get get a life to lift the beta, lift leave to the neighbor village Florent nearby village Polita. बस प्रीति बस बेटी बस। दीपाली आप यहाँ सॉरी प्रतीक्षा आप बीच में मैंने आपका नाम लिया था फिर आपने पढ़ा नहीं था, अब आप पढ़िए इतना। प्रतीक्षा yes ma'am पढ़िए। yes although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. yes, very good. So the boys are very useful to the narrator का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of being useful? उसके नरेटर के बहुत काम आए थे कि नहीं आए थे नरेटर के काम? राइट Yes, ma'am. दे आर अच्छा आपको ना इस वाले लेसन में ये नहीं बताया क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे काम करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स बेचते थे, शू शाइन करते थे, न्यूज़पेपर्स बेचते थे, उसके अलावा और भी है चीजें जो वो करते थे। देवर दी गाइड्स, जो वहां पे टूरिस्ट आते थे ना वो उनके लिए गाइड भी बन जाते थे, वो उनको जगह दिखाया करते थे आसपास की, जैसे गाइड नहीं करते लेके जाते हैं जो हमें आसपास की चीजें दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। सो दिस इज तो उन्होंने क्या किया कि द बॉयज वर वेरी यूजफुल टू द नरेटर। नरेटर यहाँ पे बाहर से आया था तो दे वर लाइक हेल्पिंग हिम
they were willing to satisfy all that narrator requires. जो भी चीजें narrator को चाहिए थी या वहां के बारे में जानना था, they were helping him. तो वो लोग, क्या हुआ कि इतने ज्यादा नरेटर इम्प्रेस हो गया, वो इसको इतने अच्छे लगने लगे दोनों बच्चे, कि उसको ये समझ आ गया कि ये जो बच्चे हैं अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं. दे आर डूइंग समथिंग विच एक्चुअली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ओल्डर पीपल. जो बड़े लोग हैं वो लोग करते हैं इस तरह के काम. सो कुछ तो मजबूरी है उनकी. सो वो एक दिन नरेटर ने उनको बोला कि कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. तो उस पे वो जो दोनों भाई थे, दे वांटेड टू गो टू विच प्लेस, कौन सी जगह है? पोलेटा. पोलेटा. इट वाज अ विलेज. तो उन्होंने विलेज वहां पे जाना था, पोलेटा. नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई वर दे गोइंग देयर? For their sister treatment. Very good. Not for the sister's treatment. They were going there because their sister was already in the hospital, which Yes. was located in Polita. Polita में कोई एक hospital था जहाँ उनकी बहन का treatment चल रहा था. So they had every weekend they used to go there. हर सप्ताह वो जाते थे वहां पर. तो उनको वहां जाने के लिए लिफ्ट चाहिए थी. व्हाट इज द लिफ्ट? लिफ्ट का क्या मतलब है? लिफ्ट ऊपर नीचे जाने वाली नहीं. लिफ्ट मीन्स दे वांटेड नरेटर के पास गाड़ी थी, ड्राइवर था. सो दे वांटेड कि वो उसको, उन दोनों को वहां पे ड्रॉप कर दे. ठीक है, छोड़ दे वहां पर. ठीक है ना. एंड मीनवाइल दे सेड कि आप जो है किसी कैफे में, कहीं पे रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाओ, ठीक है, जब तक हम अपना काम करके आते हैं. राइट? इतना सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ठीक है, हम इसके हम आगे नहीं जा रहे हैं. 8:25 हो गए हैं बेटा. राइट? तो आप अपने, जितना मैंने अभी रीड किया है, आपको मैंने एक होमवर्क दिया है. यू नो दैट होमवर्क? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसका रिसोर्स मटेरियल मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी. प्लस आपको होमवर्क करके आप ग्रुप में मेरे साथ शेयर कर सकते हो. यू कैन शो इट टू मी. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा. अब मैं इसको क्लास में यहीं पे, ओके, थैंक यू सो मच. मैं इसको यहीं पे स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ. एंड आई एम कमिंग क्लास. हाँ बेटा, बोलो बेटा. मैम, मेरा नाम प्रतीक्षा नहीं है, श्रद्धा है. ओके श्रद्धा, आई एम सो सॉरी बेटा, क्योंकि आप प्रतीक्षा के नाम से जुड़े हो तो मुझे लगा कि आपका ये नाम है. और आगे से मैं ध्यान रखूंगी. जैसे गोकुल के नाम से ऐश्वर्या जुड़ी हुई है. आप थैंक यू मैम. ओके, ठीक है बेटा. थैंक यू सो मच मैम. को होमवर्क कर लेना प्लीज. ठीक है. Good night. Bye, ma'am. ओके मैम. Bye, ma'am. बाय मैम. बाय बेटा, बाय. Good night, ma'am. गुड नाइट मैम. गुड नाइट मैम. Bye, ma'am. गुड नाइट मैम. अच्छा, जगह दीदी.